Welcome to the class, dear students. Currently, we are studying the subject of international business, and right now we are in module 1. And in past lectures, we have covered the topics which include meaning of international business, nature of international business, significance of international business, and drivers of international business. In this lecture, we are going to further explore a new topic, which will be our players in international business. So let's start with today's topic, which is players in international business. Right. So when we talk about players in international business, this topic is a very broad topic, and players means who are the key players or key organizations which actually help in international business or which conduct international business. But from our syllabus point of view, we will be discussing the type of companies which are engaged in foreign trade. So the players in international business topic will include the different types of companies which are engaged in foreign trade. Okay, so हम लोगों ने 4 टाइप की कंपनीज यहाँ पे एनलिस्ट की हुई है, 4 डिफरेंट टाइप की कंपनीज जिनका नेचर थोड़ा सा अलग होता है, जिनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है, बट ये सारी कंपनीज जो होती हैं ये जो है इंटरनेशनल ट्रेड में या इंटरनेशनल बिजनेस में इन्वॉल्व होती हैं। इन कंपनीज को अलग अलग नाम इनके स्ट्रेटजीज जो ये अडॉप्ट करती हैं इंटरनेशनल बिजनेस के लिए उस हिसाब से दिया जाता है। इनकी लोकेशन कहाँ पे होती है, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे होते हैं, क्या ये सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग होती है या डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग होती है, तो इन सारे पैरामीटर्स पे जो है हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। So when we talk about players in international business, we are going to talk about the different type of companies like the multinational company or multinational corporation, MNC, international corporation, transnational corporation, and global corporation. So one by one, we will be understanding what are different types of these corporations or companies, what are their features, and how they function. So let's start with multinational corporation. So multinational corporation is a company that operates in its home country as well as in other countries around the world. It maintains a central office located in one country, which coordinates the management of all its other offices such as administrative branches or factories. तो बेसिकली इस डेफिनेशन में हमको ये बताया जा रहा है कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या एमएनसीज जो होती हैं वो बहुत सारी कंट्रीज में ऑपरेट करती हैं। दूसरी बात, इनका एक सेंट्रलाइज्ड ऑफिस या हेडक्वार्टर होता है जो एक कंट्री में लोकेटेड होता है। जनरली वो होम कंट्री होती है। होम कंट्री की डेफिनेशन क्या होती है वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से जो है उसको समझ लिया था। होम कंट्री बेसिकली वो कंट्री होती है जहाँ पे जो है कंपनी अपने आप को रजिस्टर करती है और जहाँ से उसका की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुआ होता है, जहाँ पे उसके हेडक्वार्टर लोकेटेड होते हैं, तो वो जो है होम कंट्री होती है। तो एमएनसीज जो है एक ऐसी कॉरपोरेशन है जो कि जो है बहुत सारे कंट्रीज़ में ऑपरेट करती है, उसके ऑफिसेज बहुत सारे कंट्रीज़ में होते हैं, मगर उसका हेडक्वार्टर या सेंट्रल ऑफिस उसके होम कंट्री में होता है, एक सिंगल कंट्री में होता है, और वहाँ से ही जो है मेन डिसीजन मेकिंग स्टार्ट होती है। और जिस भी कंट्री में जिस भी जगह पे जो है उसके ऑफिसेज और कंट्रीज़ में होते हैं, उन सारी जगहों पे जो भी ऑफिस होते हैं उन सब का डिसीजन, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, वो सब कुछ जो है एक सेंट्रल ऑफिस जो कि होम कंट्री में होता है वहाँ से डिसाइड होता है। फिर उसके बाद it is not enough to call a company that exports its product to more than one country a multinational company. They need to maintain actual business operations in other countries and must make a foreign direct investment there. तो जस्ट अगर कोई कंपनी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ही सिर्फ कर रही है और कुछ खास इन्वेस्टमेंट बाहर नहीं कर रही है तो उसको जो है हम लोग एमएनसी नहीं कह सकते हैं। उसका दूसरा नाम है, वो भी जो है कंट्री, वो भी जो है कॉर्पोरेशन, उस टाइप की कॉर्पोरेशन भी जो है इंटरनेशनल बिजनेस में एंगेज कर रही होती है, मगर उसको हम एमएनसी नहीं कहेंगे। एमएनसी कहने के लिए हमारे लिए बहुत एक एसेंशियल पॉइंट होता है कि वो जो है एमएनसी, वो कंपनी दूसरी कंट्री में अगर जो है अपना ऑफिस लगा रही है तो वहाँ पे जो है वो ऑफिस या वहाँ पे जो फैक्ट्री लग रहा है उसमें वहाँ जो इन्वेस्टमेंट जा रहा है वो एफडीआई के फॉर्म में हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में हो।
आपको जैसे पता ही है कि इन्वेस्टमेंट अगर किसी भी कंट्री में किया जाता है तो बहुत अलग तरीके से करने के जो है हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, चाहे वो FII हो, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के माध्यम से हो, या चाहे वो जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में हो। तो हमारे लिए बस ये कहना जो है कि वो FII के थ्रू हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो एसेंशियल, वो जो है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा अनलेस एंड अनटिल FDI के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट वो कंपनी कर रही है। सम वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के होते हैं, पहला है वेरी हाई एसेट एंड टर्नओवर। तो जब भी कोई मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन होती है, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है उसका पॉइंट ये होता है कि उसके पास जो है एसेट्स जो होते हैं, चाहे वो कैपिटल फॉर्म में हो, फिजिकल फाइनेंशियल फॉर्म में हो, उसका जो है बहुत ही लार्ज एसेट होता है उसके पास। और जो कंपनी होती है वो बहुत ज़्यादा उसका टर्नओवर भी होता है, अक्रॉस द ग्लोब जो है उसका टर्नओवर काफ़ी अच्छा खासा होता है, और वो सब्सटेंशियल प्रॉफिट भी अर्न कर रही होती है। तो बहुत सारी MNCs होती हैं जो कि जो है इस जो है डेफिनेशन को जो है इस कैरेक्टरिस्टिक को सेटिस्फाई करती हैं। और MNC का जो बेसिक मोटिव भी यही होता है कि अगर वो लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज में ऑपरेट कर रही होती है तो ऑब्वियस सी बात है जब वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी करेगी वहाँ पे, तो जो है और उसके बाद जो है प्रॉफिट अर्न करेगी, तो लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है तो उसका एसेट भी जो है बहुत ज़्यादा होगा, उसका टर्नओवर भी बहुत ज़्यादा होगा, और कंपनी जो है सब्सटेंशियल प्रॉफिट भी अर्न करेगी। सेकेंड एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक इज नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस। तो multinational companies maintain production and marketing operation in different countries. In each country, the business may oversee multiple offices that functions through several branches and subsidiaries. तो second important characteristic multinational corporation का होता है कि पहली बात तो हमको ये पता ही है कि जो है वो डिफरेंट कंट्रीज में ऑपरेट कर रहा है, जो भी कंपनी है, अगर उसको MNC जो है हमको कहना है तो जो वो उसको डिफरेंट कंट्रीज में ऑपरेट कर रहा होगा। लेकिन वो अगर ऑपरेट कर रहा है तो उसके पास बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू ऑपरेट कर सकता है। वो अपने ऑफिसेज खोल सकता है वहाँ पे, वो अपनी ब्रांचेस जो है वहाँ पे खोल सकता है। ब्रांचेस जो है सब्सिडरी के फॉर्म में भी हो सकती हैं। तो उसके जो नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस है, सब्सिडरीज है, ऑफिसेज हैं, वो बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ पे जो है लोकली जो है ऑपरेशंस और मार्केटिंग के जो है फंक्शंस जो है वो ऑपरेशनल होते हैं। तो नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस जब हमारी बहुत लार्ज होती है तो वो भी एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक होता है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का। थर्ड पॉइंट इज कंट्रोल। तो कंट्रोल का मतलब होता है कि जो है जितने भी ऑफिसेज अक्रॉस द ग्लोब हम लोग को हमारे जो है MNC के होंगे, तो उनका कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग एक्चुअली कहाँ पे प्लेस्ड होता है, वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो जनरली MNCs के केस में क्या होता है कि जो कंट्रोल होता है, डिसीजन मेकिंग होती है, वो सेंट्रलाइज होती है। सेंट्रलाइज का मतलब कि जहाँ पे भी जो है होम ऑफिस, जहाँ पे भी जो होम कंट्री में उसका हेडक्वार्टर लोकेटेड होता है MNC का, वहीं से जो है मैक्सिमम डिसीजन मेकिंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, चाहे वो प्रोडक्ट लॉन्चिंग से रिलेटेड डिसीजन हो, मार्केटिंग से रिलेटेड डिसीजन हो, फाइनेंसेस से रिलेटेड डिसीजन हो, अगर जो है कोई कंपनी US में लोकेटेड है, वहाँ पे हेडक्वार्टर्ड है, भले ही वो इंडिया में या चाइना में या वियतनाम में या श्रीलंका में या यूरोप के किसी कंट्री में जो है वहाँ पे ऑपरेट कर रही है, मगर उसका जो डिसीजन मेकिंग है, जो मेजर इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग है, वो सारे के सारे जो है सेंट्रली US ऑफिस से ही जो है डिसाइड होते हैं। तो in relation to previous point which we have discussed just now, the management of offices in other countries is controlled by one head office located in home country. Therefore, the source of command is found in the home country. तो ये बात बहुत important है, क्योंकि हम जो बाकी जो है कंपनीज के बारे में जो है अभी समझेंगे, चाहे वो इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन होगा, चाहे वो ग्लोबल कॉर्पोरेशन होगा, तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जो है कंट्रोल का और डिसीजन मेकिंग का होता है, जो कि बाकी कॉर्पोरेशन से MNCs को डिफरेंशिएट करता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कंटिन्यूड ग्रोथ। तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कीप ग्रोइंग even as they operate in other countries. They strive to grow their economic size by constantly upgrading and by conducting merger and acquisition. तो MNCs का एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो हमेशा जो है कंटिन्यूड ग्रोथ के बारे में जो है सोचते हैं, और वो ग्रोथ जो है वो दूसरी कंपनीज को एक्वायर करके या उनको मर्ज करके इस तरीके से भी वो जो है इसको जो है
कंटिन्यू अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टाटा का हम एग्जांपल लें, टाटा इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। तो टाटा सन्स जो है वो अगर जैगवार को एक्वायर करती है तो इस तरह से वो अपने जो है टाटा मोटर्स को जो है एक्सपेंड और कंटिन्यूड ग्रोथ की तरफ ले जाती है। तो थ्रू मर्जर एंड एक्विजिशन ऑल्सो MNCs कीप ऑन growing, not just by selling their products, but through mergers and acquisitions also, they keep on growing. Next important point is sophisticated technology. So when a company goes global, they need to make sure that their investment will grow substantially. In order to achieve substantial growth, they need to make use of capital intensive technology, especially in their production and marketing activities. तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये भी होती है कि वो जो है सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी या स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी अपने प्रोडक्शन के लिए, अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करता है। वो सब स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी या ओल्ड टेक्नोलॉजी का अगर यूज़ करेगा तो ग्लोबल लेवल पे वो कभी भी कम्पीट नहीं कर पाएगा, और जब ग्लोबल लेवल पे कम्पीट नहीं कर पाएगा तो जाहिर सी बात है उसके प्रोडक्ट्स भी जो है सेल नहीं होंगे इंटरनेशनल मार्केट में, और वो एक लोकल कंपनी बन के रह जाएगा। तो अगर उसको इंटरनेशनली कॉम्पीट करना है, अपने आप को मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन की कैटेगरी में जो है रखना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी टेक्नोलॉजी वो एम्प्लॉय करेगा, चाहे अपने प्रोडक्शन के एरिया में, चाहे HR में, चाहे फाइनेंसेस में, चाहे जो भी IT सॉफ्टवेयर यूज़ करेगा, जो भी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के लिए जो भी स्किल्स टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा, वो सारी की सारी अप टू डेट और स्टेट ऑफ आर्ट होनी चाहिए। तभी जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में बाकी सारी कंपनीज के साथ जो है कॉम्पीट कर पाएंगे, और वो जो है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन की कैटेगरी में भी रह पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इज राइट स्किल्स। तो राइट स्किल्स का मतलब क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ जो है MNC में जो है काम कर रहे हैं, ओके, दोज मस्ट हैव राइट स्किल फॉर देयर जॉब। तो मल्टीनेशनल कंपनीज एम टू एम्प्लॉय ओनली द बेस्ट मैनेजर्स, those who are capable of handling large amount of funds, using advanced technology, managing workers and running a huge business entity. तो मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं उनका स्ट्रक्चर, उनकी फंक्शनैलिटी इतनी वेरीड होती है क्योंकि उसमें बहुत सारे प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, अक्रॉस द नेशन काम हो रहा होता है। तो जो भी लोग इन कंपनी में काम कर रहे हैं, MNC में काम कर रहे हैं, अगर उनका नॉलेज बेस बहुत ही लोकलाइज्ड होगा और उनको इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में नॉलेज नहीं होगा, तो आप ये समझ लीजिए कि वो ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएंगे। और जब एक बार फंक्शन नहीं कर पाएंगे वो ठीक से, तो जाहिर सी बात है कंपनी को बहुत लॉस हो सकता है, क्योंकि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी डील्स पे काम करती हैं, उनको अलग अलग देशों के लोगों के साथ इंटरेक्ट करना होता है। तो अगर जो है अगर हम दूसरे देश के लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और वहाँ की कल्चर के बारे में या वहाँ की टेक्नोलॉजी के बारे में, यहाँ के फंक्शंस के बारे में नहीं समझ पाएंगे, तो जो है कंपनी सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी और प्रॉपर आउटपुट भी नहीं दे पाएगी, और जो कंपनी का जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता है उसमें हेवी लॉस हो सकता है। तो राइट स्किल्स बहुत ज़रूरी होती हैं। ऐसे लोगों को हायर किया जाता है, ऐसे मैनेजर्स को हायर किया जाता है जिनका इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में बहुत अच्छा एक्सपोजर भी होता है और एक्सपीरियंस भी होता है। Next point is forceful marketing and advertising. So one of the most effective survival strategies of multinational corporation is spending a great deal of money on marketing and advertising. This is how they are able to sell every product or brand they make. तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है जो ये कहता है कि मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग, इस पे जो है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जो है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए बहुत डिपेंड करते हैं। तो एक काफ़ी लार्ज पोर्शन ऑफ देयर मनी और इन्वेस्टमेंट गोज इनटू मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। तो लेकिन अगर अब हम लोग ये जो पॉइंट है ये मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग का, तो ये जनरली डिपेंड करता है जनरली सेलिब्रिटीज़ पे और थ्रू TV और थ्रू अदर मीडियम्स, जिसके थ्रू वो एडवर्टाइजिंग करते हैं अपने और अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, ताकि लार्ज पब्लिक तक जो है उनके प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचे और वो प्रोडक्ट्स जो है ईजिली सेलेबल बन सकें।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्योंकि बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ होती है एमएनसीज के द्वारा। तो जनरली ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि एमएनसीज जो है ने काफ़ी पैसा जो है, काफ़ी जो है अमाउंट ऑफ मनी जो है R&D में भी जो है लगाया होगा, और उनके प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी होगी वो अप टू द मार्क होगी, कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस के बराबर होगी या उससे भी ज़्यादा होगी। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है हमेशा जो है अच्छी मानी जाती है अगर वो प्रोडक्ट जो है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन से हमको मिलता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जैसे कि वेरी हाई एसेट्स एंड टर्नओवर, नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस, कंट्रोल, कंटिन्यूड ग्रोथ, sophisticated technology, right skills, forceful marketing and advertising, good quality products। इसके बाद हम नेक्स्ट इशू पे आते हैं, जो है कि हमारा रीजंस फॉर बीइंग अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन किसी कंपनी को क्यों मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बनने की कोशिश करनी चाहिए, या उसको क्या फ़ायदा है बेसिकली मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बनने से। तो अगर सबसे पहला पॉइंट है एक्सेस टू लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट। तो सेटिंग अप प्रोडक्शन इन अदर कंट्रीज, स्पेशली इन डेवलपिंग इकोनॉमीज, usually translates to spending significantly less on production cost. Though outsourcing is a way of doing this, setting up manufacturing plants in other countries may be even more cost efficient. तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जो होती हैं वो जनरली जब दूसरे कंट्रीज में जाती हैं, जनरली डेवलपिंग कंट्रीज और लीस्ट डेवलप कंट्रीज में, तो उनको जो रॉ मटेरियल होता है और जो एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग वर्कफोर्स होता है वो उनको ईजिली अवेलेबल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यूएस से अगर कोई कंपनी जो है इंडिया या चाइना या वियतनाम या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में अपना प्लांट लगाती है, तो जनरली उसको प्रोडक्शन कॉस्ट उसकी काफ़ी रिड्यूस हो जाती है, रॉ मटेरियल्स उसको काफ़ी जो है लो कॉस्ट में मिलते हैं और उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम होती है, और ओवरऑल उनको प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा जनरेट होता है। तो एमएनसी बनने में या रीज़न फॉर बीइंग अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो है उसमें से एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एक्सेस टू लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट। Next is proximity to target international markets. So it is beneficial to set up business in countries where the target consumer market of company is located. Doing so helps reduce transportation costs and give multinational corporation easier access to consumer feedback and information as well as to consumer intelligence. जैसे for example यूनिलीवर कॉर्पोरेशन। तो यूनिलीवर कॉर्पोरेशन अगर इंडिया में प्लांट लगाता है तो वो अपना नाम थोड़ा सा चेंज करता है, उसको HUL या हिंदुस्तान यूनिलीवर कॉर्पोरेशन के नाम से जानते हैं हम लोग। ओके, तो ऐसी कंपनीज के लिए, ऐसी एमएनसीज के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो है वो जहाँ भी अपना प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, जैसे मान लो कि इंडिया में सेल कर रहे हैं, तो इंडिया में अपना जो है प्रोडक्शन सेंटर लगाएं। यहाँ पे जो है जब प्रोडक्शन सेंटर लगाएंगे तो यहाँ के कस्टमर्स तक उनके प्रोडक्ट ईजिली पहुँच पाएंगे और कस्टमर का फीडबैक भी वो ले पाएंगे, और कस्टमर का फीडबैक जब मिलेगा तो अपने प्रोडक्ट्स को जो है इम्प्रोवाइज़ कर पाएंगे, इम्प्रूव कर पाएंगे, और जो है फिर फर्दर जो है उसकी सेल को इंक्रीज़ कर पाएंगे और जो है अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर पाएंगे। तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन अगर आप जो है दूसरे कंट्रीज़ में इस्टेब्लिश नहीं कर, अगर दूसरे कंट्रीज़ में कंपनीज अपने ऑफिस को नहीं इस्टेब्लिश कर रही हैं, अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को नहीं इस्टेब्लिश कर रही हैं, केवल और केवल अपने होम कंट्री में एक्सपोर्ट प्रोडक्शन करके एक्सपोर्ट करने वाली स्ट्रेटजी पे काम कर रही हैं, तो वो एमएनसी भी नहीं कहलाएंगी। और जाहिर सी बात है कि अगर उसे होम कंट्री में रह के एक्सपोर्ट कर रही हैं तो जो टारगेट कस्टमर है, जैसे मान लो कि यूएस में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और सिर्फ एक्सपोर्ट का काम चल रहा है और इंडिया में वो सामान आ रहा है, तो डायरेक्टली कंपनी तक जो है करेक्ट फीडबैक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, नहीं पहुंच पाता है इतनी इजीली। नेक्स्ट इज अवॉइडेंस ऑफ टैरिफ। तो when a company produces or manufactures its products in another country where they also sell their products, they are exempt from import quotas and tariff। तो जब आप जो है एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी से हट के सीधे उसी कंट्री में चले जाते हैं और वहीं मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देते हैं और वहीं पे जो है आप सेल्स एंड मार्केटिंग शुरू कर देते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप कोटा और टैरिफ और कस्टम ड्यूटीज से एग्जेम्प्ट हो जाते हैं, बच जाते हैं, और इस तरीके से भी आपका प्रॉफिट इंक्रीज होता है। तो एमएनसीज का जो कॉन्सेप्ट है वो आज का नहीं है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, और वन ऑफ द अर्लीस्ट एमएनसीज जो कि जो है हम लोग उसके बारे में हर कोई जानता है, विच दैट वाज ईस्ट इंडिया कंपनी। तो
ईस्ट इंडिया कंपनी अराउंड 1600s में जो है एस्टेब्लिश हुई थी और वो फर्स्ट एमएनसी थी जो कि जो है डिफरेंट कॉलोनीज में जाके, डिफरेंट कंट्रीज में जाके जो है अपने प्लांट्स को सेटअप किया था और वहाँ से बिजनेस और ट्रेडिंग शुरू किया था। तो एमएनसीज जो का जो फॉर्मेशन था वो एकदम से नहीं स्टार्ट हुआ, उसके पीछे जो है कुछ इकोनॉमिस्ट ने उस एमएनसीज को इस्टेब्लिश करने के लिए इकोनॉमिक फिलॉसफी या बैकिंग दी थी, जिसमें से जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी वाज फ्री मार्केट इकोनॉमिक थ्योरी। तो फ्री मार्केट इकोनॉमिक थ्योरी के बहुत बड़े बड़े लोग प्रोपाउंडर रहे हैं, जैसे उसमें से एडम स्मिथ भी एक थे जिन्होंने फ्री मार्केट इकोनॉमिक थ्योरी को जो है काफ़ी इंकरेज किया था। तो फ्री मार्केट इकोनॉमिक थ्योरी क्या बोलती है कि हम लोग को जो है गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जो होता है वो कम होना चाहिए, और जब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जो है बिजनेस में और ट्रेड में कम होगा तो कंपनीज ईजिली जो है अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाएंगी और ट्रेड और बिजनेस ईजिली कर पाएंगी। और अगर हर चीज़ में बिजनेस में जो है गवर्नमेंट बार बार इंटरफेयर करेगी कि आप जो है इस फील्ड में जा सकते हैं, इस फील्ड में बिजनेस कर सकते हैं, इस फील्ड में बिजनेस नहीं कर सकते हैं, तो वो तो प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एंड ट्रेड नहीं हो पाता है। ओके, तो इकोनॉमिक फ्री मार्केट इकोनॉमी जो है, फ्री मार्केट इकोनॉमी की जो थ्योरी है वो इकोनॉमिक लिबरलिज्म की बात करती है। इकोनॉमिक लिबरलिज्म का मतलब होता है कंट्रीज अपने यहाँ ट्रेड और कॉमर्स को लेके बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस ना डालें, जो भी कंपनी जिस भी फील्ड में बिजनेस करना चाहे उसको पूरी फ्रीडम हो। और ये थ्योरी ये नहीं कहती है कि जो है बिजनेस से जो प्रॉफिट अर्न हो रहा है उसका कुछ शेयर गवर्नमेंट के पास ना जाए, इस बात को जो है ये थ्योरी नहीं कहती है, बट ये कहती है कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन जो है बंद कर दे। जैसे कि ये ना बताए कि जो है नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स इतने होने चाहिए, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स इतने नहीं होने चाहिए, या एक कंपनी इतना ही प्रॉफिट अर्न कर सकती है, इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकती है, एक कंपनी सिर्फ ये इतना ही बिजनेस कर सकती है या इन इन एरियाज में बिजनेस कर सकती है। तो इस तरीके की जो थ्योरी, इस तरीके की जो इंटरवेंशंस हैं वो ये थ्योरी कहती है कि नहीं होनी चाहिए। तो जब फ्री फॉर ऑल रहेगा सब कुछ, और जो भी कंपनी चाहे, जो भी लोग चाहें, चाहे आप चाहें, हम चाहें, जो भी चाहें, जिस भी एरिया में बिजनेस करना चाहें, अगर हमारे लिए ओपन रहेगा तो जाहिर सी बात है हम किसी भी कंट्री में जो है, अगर ये फिलॉसफी अगर सारी कंट्रीज अडॉप्ट करती हैं तो अमेरिका से कोई भी कंपनी इंडिया में आ सकती है आराम से विदाउट एनी टैरिफ्स एंड टैक्सेस। इंडिया से कोई भी कंपनी जो है अमेरिका में जा सकती है। तो अगर वहाँ की पब्लिक को, जिस भी कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट जो है कंपनी सप्लाई करना चाहती है, अगर वो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देता है देन इट्स फाइन, अगर वो नहीं रिजेक्ट करता है तो वो कंपनी सर्वाइव करेगी। तो बेसिकली फ्री मार्केट इकोनॉमी जो फिलॉसफी थी वो जो है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के कल्चर को एंकरेज करती है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट कॉर्पोरेशन के बारे में, जिसका नाम जिसको हम इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन बोलते हैं। तो इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन क्या होता है? तो इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन का मतलब होता है कि दोज कंपनीज विच आर प्राइमरली इंटरेस्टेड इन एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम होम कंट्री। ओके, तो दोज कंपनीज विच आर प्राइमरली इंटरेस्टेड इन बिजनेस ऑफ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट फ्रॉम होम कंट्री, तो वो उसके ऑफिसेज दूसरी जगह पे नहीं होते हैं, और जिसके ऑफिसेज दूसरी जगह पे हमको जो है नहीं दिखते हैं। तो जनरली होता क्या है कि जो है इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के ऑफिस जो होते हैं वो दूसरे कंट्रीज में नहीं होते हैं, और इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन सिर्फ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के थ्रू ही काम करती है। ऑपरेशंस जो उसके होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ होम कंट्रीज में ही एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे वो लोकेटेड होती है, और फंक्शंस जो उसके होते हैं वो होम कंट्री के हिसाब से ही डिसाइड होते हैं, और मेजर इन्वेस्टमेंट भी उसका जो है होम कंट्री में ही होता है। जैसे एमएनसी के ऑफिसेज डिफरेंट लोकेशंस ऑफ द वर्ल्ड में होते हैं, इसका लोकेशन सिर्फ होम कंट्री में होता है, और सिर्फ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के थ्रू अपना इंटरनेशनल बिजनेस और ट्रेड करता है। तो स्पेंसर्स जो है रिटेल, राजीव आरपी संजीव गोयनका ग्रुप का जो है एक चेन है स्पेंसर्स रिटेल, वो इसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन। ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन जो होते हैं ये भी जो है डिफरेंट कंट्रीज में ऑपरेट करते हैं, और इनका ऑफिस जो होता है जनरली सेंट्रलाइज्ड होता है, मगर इनका जो डिसीजन मेकिंग होता है, इनके जितने भी ऑफिसेज हैं
वो वहाँ पे वो डिसीजन को जो है अपने अलाउ करते हैं कि वो लोग अपने लोकल कंडीशन के हिसाब से जो है वो डिसीजन ले सकें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर फोर्ड मोटर्स है या नोकिया है, तो वो अगर इंडिया में भी उसका ऑफिस होगा, तो इंडियन कंडीशंस के हिसाब से अगर वो इंडियन ऑफिस डिसीजन लेना चाहे, अपने प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहे, तो वो इजीली ले सकता है। ये चीज़ आपको एमएनसी में नहीं दिखती है। एमएनसी में सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग होता है, जो उसके होम कंट्री में जो हेड ऑफिस में जो डिसीजन होता है वही जो है अक्रॉस द ग्लोब फॉलो होता है। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल कॉर्पोरेशन। तो ग्लोबल कॉर्पोरेशन जो होता है, दे हैव ऑफिसेज एंड सेंटर्स इन लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज, इवन मोर देन दैट ऑफ एमएनसीज। मेजर डिसीजंस हैव सेंट्रलाइज्ड, लाइक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, product development decision, merger and acquisition decision. They have many subsidiaries, but usually standard product is sold across all the region without much flexibility with respect to adapting to local consumers. तो ग्लोबल कॉर्पोरेशन होता है, उसके ऑफिसेज जो है अक्रॉस द ग्लोब होते हैं, और मगर इसके ऑफिसेज ये भी बोला जाता है कि एमएनसीज के जितने ऑफिस होते हैं उससे कहीं ज़्यादा ऑफिस ग्लोबल कॉर्पोरेशन के होते हैं। इसका भी डिसीजन जस्ट लाइक एमएनसी जो होता है वो सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग होता है। इसके प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो लोकल कंडीशन के हिसाब से अडेप्ट नहीं होते हैं। एक जनरली स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होता है जो अक्रॉस द ग्लोब सेल किया जाता है। जैसे मान लीजिए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स होते हैं, तो आईबीएम का विंडोज, जो माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज है वो अक्रॉस द ग्लोब आपको सेम स्टैंडर्ड मिला है। ऐसा नहीं इंडियन कंडीशन के हिसाब से अलग तरीके से जो उन्होंने मैन्युफैक्चर किया होगा, चाइना के हिसाब से अलग मैन्युफैक्चरिंग हुई होगी। तो इस तरीके से हम लोग मेजर डिफरेंस देखें अगर, तो ऑपरेशंस एंड ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, स्ट्रेटजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनके हिसाब से जो है हम लोगों ने मेजर इनके पॉइंट्स देख लिए हैं। इनकी स्ट्रेटजी जो है एमएनसी में सेंट्रलाइज होती है, ग्लोबल कॉर्पोरेशन में सेंट्रलाइज होती है, ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन में डिसेंट्रलाइज होती है। तो इसी तरीके से जो है हम लोग ने अलग अलग जो है इन लोगों के पॉइंट्स और फीचर्स देख लिए हैं। तो today we will close our lecture here, and in this lecture we have studied about different kinds of players in international business: multinational company, international company, transnational company, and global company or corporation. So we will close our lecture here, and thank you for joining for this lecture. Thanks a lot.